कैमराज जो है ऑन करें, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस नहीं होगी। इसका कैमरा ऑन होगा, सिर्फ उसकी अटेंडेंस लगेगी। अपने कैमराज ऑन करें और जो कैमराज जिनके ऑन होंगे सिर्फ उनकी अटेंडेंस लगेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबने ज्वाइन कर लिया है और प्लीज ऑन योर कैमरास, अदरवाइज विल बी मार्क्ड एब्सेंट। ओके, हमने लास्ट 2 डेज में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का किया, ठीक है। कौन सा चैप्टर, कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं हम? ज़ैनब नूर, प्लीज कैन यू टेल मी? ज़ैनब नूर। यस मैम। यस मैम। हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर या यूनिट कौन सा चल रहा है जी? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, वैसे इन्फ्लेमेशन का है हीलिंग एंड रिपेयर और इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो इसमें हम टॉपिक में आपको करवा रही हूँ, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कंप्लीट कर दी है, ठीक है। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिपेयर एंड हीलिंग, ठीक है। उसमें टिश्यू रिपेयरिंग का आज हम टॉपिक करेंगे, ठीक है।
Okay, as you know, acute and chronic inflammation. ठीक है, there are two types of inflammation: acute inflammation and chronic inflammation. Okay, now we will see what happens if there is a inflammation. Then there will be acute insult in case of acute inflammation. If there is a damage, now we will see if the damage is slight. ठीक है, yes, the damage is slight. Then it will lead to the resolution. ठीक है, there will be resolution will be possible. If the damage is not slight, it means it is more insult to the tissues, and then there will be, and on the other side, if there is a chronic insult, and then when the damage is not slight, then it will lead to the chronic inflammation. And you know, the chronic inflammation, it ends in the form of repair and scarring. Okay, understand? Okay, next we will do what is the regeneration and repair. What is regeneration? Regeneration is basically restoration of normal structure and function. So, and there is also persistence of supportive tissue skeleton that is necessary, and there will be basement membrane. There should be basement membrane of epithelia and reticulum frame in liver. And what is repair? ठीक है, what's the definition of repair? Or when we use the word repair, so repair, this is basically restoration of normal shape and function if it is impaired or lost. And there will be, in repair, there will be parenchyma replaced by the fibrous tissue. Okay, what are the tissue types, or what are the tissues that are involved in basically regeneration? So in the number one, there is a labile cells. Labile cells, their normal state is active cell division, and there is usually rapid regeneration of these cells, and they are also involved in continuous regeneration from stem cells. They have the capacity of, or they have the property of self-renewal. And hematopoietic, so they are formed from the hematopoietic stem cells in the bone marrow, and surface epithelia, they are present on the form of surface epithelia. कौन-कौन सी जगहों पे होती है? The skin, oral cavity, vagina, and cervix. And ductal epithelia, they are present in salivary glands, pancreas, biliary tract, and in mucosas, there are present mucosas. It is present in GIT. आपका जो GIT है, सारी there they are in the form of mucosa, and it is also present in uterus, fallopian tube, and urinary bladder. Okay, second number पे जो cells हैं, they are stable cells. ठीक है, they are not normally dividing at a significant rate. ठीक है, as compared to when we compare it with the labile cells, they have the capacity of self renewal. ठीक है, और ये rapidly इनकी division होती है. ठीक है, but stable cells, they are not normally dividing at a significant rate, and the speed of regeneration can be variable, and the regeneration as they have the property of regeneration as response to the injury. And the parenchyma, they are in the form of parenchyma. कहाँ पे present होंगे? They are found in the organs. Organs में होंगे just like liver, pancreas, renal tubules, and mesenchymal cells and endothelium. Okay, the third cells, there are permanent cells. ठीक है, permanent cells की क्या property है? They are unable to divide, and they have the property of unable to regenerate. मीन्स के इनमें कोई डिवीजन और रीजनरेशन की ऐसा कोई खास कैपेसिटी नहीं होती. तो सबसे ज्यादा इसमें कौन से सेल्स में प्रॉपर्टी होती है डिवीजन और रीजनरेशन करने की? नुसरत आयशा इकबाल, कैन यू टेल मी how many types of cells are there for the regeneration? Students who have not switch on your camera, you will be marked absent. मैम जी मैम कैमरा ऑन करते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाती है क्लास. क्यों, आपका इंटरनेट इशू है कोई? यस मैम.
Okay, Rita Zahir, can you tell me how many types of cells for the regeneration? कितनी टाइप्स के सेल्स होते हैं जो रीजनरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते मैम स्टेम सेल्स। हैं? अच्छा, और अभी ये आपके रैपिडली स्क्रीन पे डिवाइडिंग सेल। इनके नाम भी आ रहे होंगे, ठीक है। ये देखो, ये आपके जो रीजनरेशन में होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स के होते हैं, लेबाइल सेल्स, स्टेबल सेल्स एंड परमानेंट सेल्स। नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पे? यस मैम। ओके, जैनब नूर, कैन यू टेल मी कौन से सेल्स में ज्यादा रीजनरेशन या सेल डिवाइडिंग की कैपेसिटी होती है? मैम लेबाइल सेल्स जो हैं रैपिडली रीजनरेट करते हैं, बट आई हैव अ क्वेश्चन कि परमानेंट सेल्स आर अनएबल टू रीजनरेट, so how can they fall under the category of cells that can regenerate? They have the property but they are not मतलब कि they don't have the property but these cells they are present in regeneration, ठीक है। पर इनकी इतनी नहीं होती, सबसे कम होती है इनकी as compared to the stable and labile cells। Okay. Okay, now there are some factors that are controlling the regeneration, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा सा short form में किया है। There are some complex and मतलब कि they are not poorly completely understood कि ये इनका बहुत ज्यादा डिटेल में क्या रोल होता है, but there are some growth factors that can play an important role in controlling the regeneration, ठीक है। And there is EGF, PTGF platelet derived growth factors, FGF fibroblast growth factors, epidermal growth factors, and there are also some hormones like ACTH, estrogen, and growth hormones. Okay, these are the factors or these are the growth factors that can control the regeneration. And second, there is a contact with basement membrane and adjacent cells, and there can be signaling through the integrins. आपने बस इनके जस्ट इनके थोड़े से नाम याद करनी है और इसके अलावा बहुत ज्यादा करनी है। This is a picture of regeneration in a kidney after acute damage. Okay, this is important. आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है और इनको याद भी करना है। इसमें है what are the steps in scar formation, ठीक है। टिश्यू रिपेयर में स्कार फॉर्मेशन जो है, what are the steps? So basically there are three main steps that are involved. Number one, there is angiogenesis. Second is formation of granulation tissue, and third is remodeling of connective tissue. Okay, can you tell me what is angiogenesis? Ma'am, formation of small blood vessels. There is formation of small blood vessels, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो formation of blood vessels, ठीक है। लेकिन आपको at least you should know there is not the formation of all the vessels, ठीक है। इसमें मीडियम और लार्ज ये इस तरह की इतनी बड़ी बड़ी वेसल्स की फॉर्मेशन नहीं होती। इसमें there is formation of just small blood vessels। ओके, हम थोड़ी सी आगे से डिटेल्स कर लेते हैं। angiogenesis is the formation of new blood vessels which supply। अच्छा, इसमें ये है कि what can be the function, मतलब ये न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन क्यों हो रही है इस जगह पे? हीलिंग के प्रोसेस में या आपका जो स्कार टिश्यू बन रहा है उसमें ब्लड वेसल्स की क्या जरूरत है? तो बेसिकली दे सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। जी, न्यूट्रिएंट्स इसलिए कि आपका जो हीलिंग हो रही है या टिश्यू बन रहा है, ठीक है, टिश्यू रिपेयर हो रही है आफ्टर एन इंजरी, देयर इज सम नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें देयर विल बी द एंजियोजेनेसिस। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है, देयर शुड बी एंजियोजेनेसिस की प्रॉपर्टी, बिकॉज द ब्लड वेसल दैट स्मॉल ब्लड वेसल्स दैट विल बी फॉर्म्ड इन दिस tissue, they will be supply nutrient and oxygen needed to support the repair process, ठीक है। otherwise repair process आपका possible नहीं है। secondly, newly formed vessels they are leaking, ठीक है। ये they are somehow leaky होती हैं because of इसलिए बिल्कुल न्यू बन रही होती है और मेच्योर नहीं होगी, and because of incomplete inter endothelial junction, ठीक है। उनके
interendothelial junctions, they are incomplete. And because vascular endothelial growth factors, the growth factor क्या करता है, that drives angiogenesis, it increases the vascular permeability. ठीक है, इसमें vascular permeability थोड़ी सी increase होगी, and this leakiness it accounts in part for the edema that may persist. ठीक है, आप देखोगे कहीं पे भी नया एक टिश्यू बन रहा है तो इसमें थोड़ा सा आपको एडिमा की थोड़ी सी पिक्चर नजर आएगी, because there is increased vascular permeability of these due to angiogenesis, in which there is formation of new blood vessels. So this edema it can persist in healing wounds long after the acute inflammatory response has resolved. ठीक है, अगर आप देखते हो तो उसमें काफी अरसे तक जो वुंड हील होने के बाद भी उसमें कुछ लेवल तक एडिमा persist कर रहा होता है. Second, there is formation of granulation tissue. So migration and proliferation of fibroblasts and deposition of loose connective tissue together with the vessels and interspersed leukocytes, they form the granulation tissue. This is important. क्या है granulation tissue formation में? Basically, there is migration and proliferation of fibroblasts and deposition of loose connective tissue. But they are with the vessels and interspersed leukocytes, they form the granulation tissue. So the term granulation tissue it derives from its, this is also important, why it is called granulation tissue. It derives from its pink, soft, granular, gross appearance, such as that seen beneath the scab of a skin wound. ठीक है, अगर आप skin wound जो होता है बिल्कुल नया heal हुआ, देखो इसका जो color है that is light pink, soft होता है, and they have some granular gross appearance. ठीक है, तो न्यूली फॉर्म जो भी ग्रेनुलेशन टिश्यू होगा आप उसमें ऑब्जर्व करोगे कि स्कैब के नीचे या स्किन वुंड जो होता है जो हील कर चुका होता है, बट देयर इज आपकी बाकी स्किन कलर से मैच नहीं कर रहा होता, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पिंकिश उसमें थोड़ा सा आ रहा होता है. ठीक है, एंड द थर्ड, देयर इज इट्स हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड न्यू थिन वॉल्ड delicate capillaries in a loose extracellular matrix and often with the admixed inflammatory cells and mainly macrophage. अच्छा, आपको मुझे ये बताओ कि मैक्रोफेज एक्टिवेशन में कौन से 2 पास फेज थे? कैन यू नेम इट? Classical and alternate. शहरयार अली, are you there? अच्छा, मोहम्मद अब्दुल्ला, आपको आवाज आ रही है? मोहम्मद अब्दुल्ला, ओके. महक, आप लोग कैमरास ऑन करके कहाँ चले जाते हो भाई? कैमरास ऑन है बट मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा. हाय का अशरफ. यस मैम. कौन बात कर रहा है अभी? मोहम्मद अतीब. ओके, मोहम्मद अब्दुल्ला. Yes, ma'am. कैन यू हियर मी प्लीज? ओके, टेल मी मैक्रोफेज एक्टिवेशन के लिए कैन यू नेम द पाथवेज? कौन से 2 पाथवेज होते हैं? मुझे सिर्फ ये ज़ैनब नूर नजर आ रही है और इसके अलावा सबके कैमरास इधर उधर. रिदा जहीर है और सबने सिर्फ पिक्स लगाई हुई है और इधर उधर. रिदा जहीर, आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. ओके, टेल मी मैक्रोफेज एक्टिवेशन के लिए कैन यू टेल मी व्हाट आर द पाथवेज? Ma'am, classical pathway होता है और reactive. There is a classical pathway, but
और सेकंड इज ऑल्टरनेटिव पाथवे, ठीक है, ऑल्टरनेटिव पाथवे फॉर मैक्रोफेज एक्टिवेशन, ठीक है। इन क्लासिकल पाथवे में क्या होता है, क्लासिकल पाथवे में मेरा ख्याल है मैंने आपको 3 टाइम्स करवा दिया है। ये मैक्रोफेज एक्टिवेशन का रोल होता है, अगर आप लोग तो ये अंडरस्टैंड करोगे और आप लोग याद रखोगे, देन यू कैन कि आप आगे कर सकते हैं। हाँ जी, जैन इफ्तिकार। यस मैम। हाँ जी, आप पाथवेज का बता सकते हो फॉर मैक्रोफेज एक्टिवेशन के लिए कौन कौन से 2 पाथवेज हैं? मैम क्लासिकल और अल्टरनेटिव। ठीक है, क्लासिकल पाथवे में क्या होता है? अच्छा, क्लासिकल पाथवे इंड्यूस कैसे होगा, क्या उसके लिए आता है, स्टिमुलस क्या आता है या क्या चीज होती है जो उसको इंड्यूस करती है कि वो आगे अपना फंक्शन करे, या उसमें से साइटोकाइन्स रिलीज हो और वो आगे अपना रोल प्ले करें? हाँ जी, ज़ैनब आप बता सकते हो? यस मैम। आप बता सकते हो इसमें जो फर्स्ट है आपका क्लासिकल मैक्रोफेज एक्टिवेशन पाथवे, उसमें क्या है जो उसको इंड्यूस करता है या स्टार्ट करता है? मैम क्लासिकल चीज़ है। पाथवे में वी हैव इंटरल्यूकॉन्स एंड इंटरफेरॉन्स जो आते हैं और हमारी उसकी There रिएक्शन is microbes, उसकी ठीक है, इफेक्ट शो। microbes आते हैं। नंबर 1 there will be microbes. Microbes की क्या चीजें होती हैं? Endotoxins of microbes, and second there is interferon gamma, ठीक है। क्या है, इसको इंड्यूस करेंगे, they यस will मैम। have a positive effect, ठीक है, इसको इंड्यूस करेंगे but they will have a inhibitory effect on the alternative pathway, ठीक है, उसको ये इंड्यूस नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट इसमें से क्या प्रोड्यूस होगा, आपका ये एक्टिवेट हो गया मैक्रोफेज, अब ये फर्दर क्या प्रोड्यूस करेगा? मैम उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, एक तो इसकी देयर विल बी एंटी माइक्रोबिसिडल इसका आएंगे इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है, ये सारे माइक्रोब्स को एनगल्फ करेगा, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल, ये है इसका फंक्शन। सेकंड फंक्शन, देयर विल बी रिलीज ऑफ सम साइटोकाइन्स, ठीक है, एंड दे विल कॉज द इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ये आपको बता रही क्लासिकल पाथवे क्या इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेंगे। ऑल्टरनेटिव पाथवे में क्या होगा? हाँ जी, मोहम्मद अतीब। जी मैम। बेटा बताओ मुझे, व्हाट्स द अल्टरनेटिव पाथवे फॉर मैक्रोफेज एक्टिवेशन? मैम मेरा कनेक्शन वीक है, आवाज आपकी बहुत कट रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही। जो पढ़ाया है वो आपको समझ आई है, कुछ आवाज आई है या नहीं? जी मैम आ रही है, थोड़ी थोड़ी वो कट रही, वो कनेक्शन वीक है, वो कट रही अभी, आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही सही तरह, ब्रेक हो रही है, डिस्टॉर्शन हो रही है। सब गायब है बेटा, आप लोगों ने मैम सबके अपने कैमरा। मैं रिकनेक्ट करता हूँ, 1 मिनट, मैं रिकनेक्ट करता हूँ मैम एक दफा। आई थिंक आप लोगों के कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज हैं आपकी तरफ। चलो लेट्स गो, आगे चलते हैं, ठीक है। ये सेकंड मैंने आपको बताई है, फर्स्ट वाज द एंजियोजेनेसिस, दीस आर द स्टेप्स इन द टिश्यू रिपेयर, ठीक है, स्टेप्स इन टिश्यू रिपेयर, देयर नंबर 1 देयर वाज एंजियोजेनेसिस, ठीक है, और सेकंड मैंने आपको बताया है देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन टिश्यू इट प्रोग्रेसिवली इन्वेड्स द साइट ऑफ इंजरी, ठीक है। अब ग्रेनुलेशन टिश्यू में ऑब्वियसली इट विल be formed at the site of injury, but the amount of granulation tissue that is formed, it depends on the size of the tissue deficit, ठीक है, आपकी इंजरी हुई है, कोई बड़ी इंजरी हुई है या स्मॉल हुई है, ठीक है, तो ग्रेनुलेशन टिश्यू की जो अमाउंट होती है ये इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द टिश्यू डेफिसिट, ठीक है, वहां पे कितनी टिश्यू डेफिसिट है क्रिएटेड बाय द वुंड एंड द इंटेंसिटी ऑफ द इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ये 2 फैक्टर्स हैं दैट विल कि आपके डिटेक्ट करेंगे हाउ मच ग्रेनुलेशन टिश्यू इज रिक्वायर्ड एट द साइट ऑफ इंजरी। ओके, द थर्ड देयर इज रिमॉडलिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू।
रिमॉडलिंग में क्या है, देयर इज मेच्योरेशन ऑफ एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। व्हाट इज रिमॉडलिंग? दिस इज मेच्योरेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज कॉल्ड रिमॉडलिंग, ठीक है। एंड दे प्रोड्यूस अ स्टेबल फिब्रस स्कार, ठीक है। अब हम सबसे पहले हमारा जो स्टेप था देयर वाज एंजियोजेनेसिस, के आपकी एक साइड पे इंजरी हुई है तो क्या होगा, देयर आर सम ग्रोथ फैक्टर्स एंड पीजीएफ जो होता है उसमें क्या करता है, दे विल कॉज अ एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस मींस के फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल न्यू स्मॉल ब्लड वेसल्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था सेकंड स्टेप वाज देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू। अब थर्ड में जो है देयर इज रीमॉडलिंग ऑफ कनेक्टिव, ठीक है। बेसिकली आप नो द स्कार इज गोइंग टू बी मैच्योर एंड देयर इज मैच्योरेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। सो द अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अब हमने थर्ड फेज में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू इंक्रीजेस इन द ग्रैनुलेशन टिश्यू, ठीक है। सेकंड स्टेप में देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ ओनली, सेकंड स्टेप में हमने देखा उसमें ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन हुई थी, बट इन थर्ड स्टेप द अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्रीजेस इन द ग्रैनुलेशन टिश्यू, ओके। It will eventually result in the formation of a scar which may remodel over time, ठीक है। अब यहाँ इस लेवल पे हमारा स्कार फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो आपने ये तीनों स्टेप्स एटलीस्ट नेम और फिर इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आपने, okay, the next is factors. What are the factors that influence the tissue repair, ठीक है। आपकी टिश्यू रिपेयरिंग होनी है, बट इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कुछ रोल प्ले करते हैं कि वो इसको आपकी जो है उसको टिश्यू रिपेयर को एनहांस करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। इसमें से मोस्टली दिस आर द लिस्ट ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस टिश्यू रिपेयर, ठीक है। इसमें नंबर 1 पे है देयर इज इन्फेक्शन, सेकंड इज diabetes, third is nutritional status, and then glucocorticoids जिनको हम steroids बोलते हैं, and some mechanical factors, poor perfusion, foreign bodies, the type and extent of tissue injury and the location of the injury, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो आपको इन सबके नाम आने चाहिए, ठीक है। अब हम इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स करते हैं। इन्फेक्शन, ठीक है। नंबर 1 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द टिश्यू रिपेयर इज इन्फेक्शन, ठीक है। क्लिनिकली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ डिले इन हीलिंग, ठीक है। अगर आपके जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे इन्फेक्शन इज परसिस्टिंग, देन इट विल लीड टू द डिले इन हीलिंग, ठीक है। आपकी हीलिंग को फास्ट नहीं जाने देगा, ठीक है। इसमें डिले का एलिमेंट आ जाएगा। इट प्रोलॉन्ग्स इन्फ्लेमेशन एंड पोटेंशियली इंक्रीजेस द लोकल टिश्यू, ठीक है। समझ आई इसमें इन्फेक्शन का क्या है। टिश्यू रिपेयर को डिक्रीज करवाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी। अगर इन्फेक्शन उस जगह पे परसिस्ट रहेगा तो इन्फ्लेमेशन भी कर रहे होगा, ठीक है, और वहां पे हीलिंग के प्रोसेस को बेसिकली डिले कर देगा, ठीक है। तो इन्फेक्शन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, बताओ क्या क्या मेजरमेंट्स या क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। देन इट्स अ कॉल, आप बताओ। मेडिकेशन करेंगे। हाँ जी, मेडिकेशन क्या, एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं भाई, आप एंटीबायोटिक्स ले सकते हो ताकि आपके सर्कुलेशन में जो है थोड़ी सी उसमें इन्फेक्शन के एलिमेंट को भी थोड़ा सा कम करे, ठीक है। तो कम करेगा तो उसमें क्या होगा, इसमें वुंड हीलिंग का जो है वो फास्ट हो जाएगा। अगर देयर इज इन्फेक्शन परसिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसमें वुंडिंग जो है आपकी वुंड हीलिंग और टिश्यू रिपेयर का जो प्रोसेस इट विल बी डिलेड। सेकंड देयर इज डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज मतलब जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं आपने देखा होगा कि उनके अंदर वुंड हीलिंग जो है काफी डिले होती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल ह्यूमन, ठीक है। बेसिकली क्या है, डायबिटीज इट्स अ मेटाबॉलिक डिजीज दैट कॉम्प्रोमाइजेस टिश्यू रिपेयर फॉर मेनी रीजंस, ठीक है। देयर आर सो मेनी रीजंस की जिसकी वजह से टिश्यू रिपेयर का प्रोसेस जो है या इसका टिश्यू रिपेयर का या हीलिंग का जो प्रोसेस होता है वो काफी डिले होता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टेमिक कॉजेज ऑफ एब्नॉर्मल, ठीक है। इसमें क्या है, डायबिटीज किस तरह रोल प्ले कर सकती है।
डायबिटीज का क्या है, कोई डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो आपके ख्याल में क्या है, व्हाई देयर इज डिले इन रिपेयर? शुगर शुगर यूटिलाइजेशन नहीं हो सकती तो सेल मैकेनिज्म जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। सॉरी मैं समझ नहीं आई थोड़ा सा। हम ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं ना होगा डायबिटीज के अंदर तो सेल का जो नॉर्मल वर्किंग है वो प्रॉपर नहीं चलेगी। तो जब हमने पहले पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होता है सेल रिपेयर के लिए तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो सफिशिएंट पहुंच नहीं रहे सेल को। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मैं समझ आई है, बस बहुत क्लियर आपकी मुझे बात नहीं आ रही है। हाँ जी, कोई और स्टूडेंट? फाहद बिलाल, हाँ जी आप बताओ। Yes, ma'am. Why in diabetic patients wound healing या tissue repair is delayed? मैम ये ग्लूकोज नहीं है, केटोजेनेसिस में पेशेंट या सब्जेक्ट चला जाता है तो बॉडी स्ट्रेस में होती है। You mean के ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ज्यादा होते हैं? अच्छा, और इसके अलावा? मैम बॉडी जो है वो अंडर स्ट्रेस होती है कि मतलब वो दूसरी चीजों को डील कर लेती है। सो दैट these फैक्टर्स जो हैं ये रिपेयरिंग पे वो अफेक्ट होते हैं। तो ठीक है, इसी हद तक ठीक है। और आपकी इम्यूनिटी भी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है। अच्छा, देयर आर जो नेक्स्ट है इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या स्टेरॉइड्स, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या स्टेरॉइड जो होते हैं इसका एक एंटी इंफ्लेमेटरी को इफेक्ट होता है, ठीक है जी। फाइका स्टॉक हैंड रेज किया था। अच्छा, दे हैव वेल डॉक्यूमेंटेड एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स। मैम डायबिटिक पेशेंट्स में ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, इसकी वजह से ग्लूकोज सफिशिएंट नहीं होता वुंड हीलिंग के लिए। ठीक है, ये भी है, इसमें मल्टीपल रीजंस होती है, ठीक है। अच्छा, about glucocorticoids, they have well documented anti-inflammatory effects and their administration it may result in weakness of the scar, ठीक है। इनका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट तो होता है बट दे क्या करती है, स्कार को वीक करती है बेसिकली ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा प्रोडक्शन एंड डिमिनिश फाइब्रोसिस, ठीक है। ठीक है, स्टेरॉइड जो एंटी इंफ्लेमेटरी फैक्टर है बट ऑन द स्कार, रिमेंबर ऑन द स्कार पे जो है स्टेरॉइड्स का दे विल वीक द स्कार and in some cases the anti-inflammatory effects of steroids they are required, ठीक है। but in some cases में ये चाहिए भी होती है, जरूरत भी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो आपके जितने भी कॉर्नियल इन्फेक्शन होती हैं उसमें हम जो है ज्यादातर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और स्टेरॉइड्स रेकमेंड किए जाते हैं टू रिड्यूस द ओबेसिटी, ठीक है। कि वो यहाँ पे वो ज्यादा ओबेसिटी को एनहेंस ना करे, ठीक है, तो इसके लिए हम रेकमेंड करते हैं। बट ऑल अदर कंडीशंस या जितने भी होते हैं आपकी जो एक फूड इन्फ्लेमेशन, सब में स्टेरॉइड्स की जरूरत नहीं होती बल्कि वो उसको स्कार को दूर करें, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज मैकेनिकल फैक्टर्स, ठीक है। मैकेनिकल फैक्टर्स में क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, देयर कैन बी ड्यू टू इंक्रीज लोकल प्रेशर। अगर आपने कहीं पे इंजरी हुई है या इन्फ्लेमेशन चल रही है, अगर आपने इंक्रीज लोकल प्रेशर सप्लाई किए हैं या टॉर्जन सप्लाई किए हैं, दे विल कॉज द वुंड्स टू पुल अपार्ट आर डेज, ठीक है। आपको ज्वाइन नहीं करने देगी और वहां पे टिश्यू रिपेयर का प्रोसेस को स्लो कर देगी। So these are the mechanical factors. And the next there is poor perfusion due to arteriosclerosis and diabetes or to obstructed venous drainage. इसमें होती कंडीशन में फॉर एग्जांपल इन वेरिकोज वेन they also impair the healing, ठीक है। These are the causes of poor perfusion, ठीक है। इसमें से आपने एक एग्जांपल दिया कि डायबिटिक पेशेंट्स में भी poor perfusion होती है जो कि one of the factor that delays the tissue repair को प्रोसेस को वो स्लो कर देता है, ठीक है। डायबिटीज पेशेंट में वन ऑफ द फैक्टर कैन बी पुअर परफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट इज फॉरेन बॉडीज, ठीक है। अगर वहाँ कहीं पे इन्फ्लेमेशन हुई है या कोई
ट्रॉमा या इंजरी हुई है और वहां पे स्टिल देयर आर सम फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टील, ग्लास और इवन बोन, ठीक है, तो क्या करेंगे, दे विल इम्पीड द हीलिंग, वो हीलिंग नहीं होगी। And the next there is location of the injury. Location of the injury is very important. ठीक है, location of the injury and character of the tissue, they are all also important. So inflammation arising in tissue spaces like tissue spaces आपकी कौन कौन सी होती है, like peritoneal spaces, synovial cavities, and they develop extended exudates होते हैं, ठीक है। Basically there is production of, in these cavities there is production of extensive exudates. Okay, what are the spaces? Pleural, peritoneal and synovial cavities. So repair may occur by digestion of the exudate and it is initiated by proteolytic enzymes of leukocytes. ठीक है, यहाँ पे exudate जो इन cavities में बने हैं, यहाँ पे leukocytes के जो है exudated sites के proteolytic enzymes आएंगे, ठीक है, and they will cause the resorption of the liquefied exudate. And so ये क्या करेंगे, this is called resolution, के सारी वो reabsorption कर रहे हैं सारे। However, in the setting of larger accumulations, if the fluid is too much and the exudate undergoes organization, okay, the second possibility there can be exudate undergoes organization. So granulation tissue, it goes into the exudate and a fibrous scar ultimately, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है लोकेशन की इंजरी जो है इसमें टिश्यू फॉर्मेशन या टिश्यू रिपेयर किस फॉर्म में होगा, ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। इन सम स्पेसेस लाइक पेरिटोनियल कैविटी साइनोवियल में क्या है, देयर विल बी प्रोटीनोटिक एंजाइम्स ऑफ लिकोसाइट, क्या करेंगे, दे विल डू द reabsorption of the liquefied exudate, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा लार्जर एक्यूमुलेशन है, क्या है, एक्सुडेट अंडरगोज ऑर्गेनाइजेशन और फिर ग्रेनुलेशन टिश्यू जो है इट इन्वेड्स इनटू द एक्सुडेट, ठीक है, इसमें ग्रो करेगा और फाइबर स्कार बना। अच्छा, ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रिपेयर, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस रिपेयर की क्या क्या हो सकती है, दे कैन बी सफिशिएंट फाइब्रोसिस, ठीक है, इसमें क्या है, sufficient fibrosis will cause the formation of wound adhesion, ठीक है, आपका wound जो है तो totally बंद नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा there can be some weakness tissues की हो सकती है and it will lead to the hernia, ठीक है। आपने देखा होगा जहाँ पे टिश्यू थोड़े वीक होते हैं इसमें बाद में किसी लेवल पे आके herniation हो जाती है, ठीक है, and there can be ulceration and excessive fibrosis। सेकंड क्या है कॉम्प्लिकेशन, एक्सेसिव फाइब्रोसिस। अब फाइब्रोसिस क्या, इसमें कॉस्मेटिक स्कारिंग हो जाती है, ठीक है। कॉस्मेटिक स्कारिंग के आपके ऐसी जगह पे इन्फ्लेमेशन या अगर टिश्यू रिपेयर हुई है तो वहां पे ये स्कार छोड़ जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉस्मेटिक स्कारिंग। एंड देयर कैन बी इसमें स्कार में क्या सोचते हैं, कई दफा इसमें देयर इज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ कीलाइड, ठीक है, काफी उभरा हुआ रेड सरफेस बन जाती है, ठीक है, ये भी आपको कॉस्मेटिक स्कारिंग है। And there can be some hypertrophy scar. And third is excessive contraction, ठीक है। अब contraction क्या है कि आपके just like आपके elbow joint पे या आपके knee joint पे अगर inflammation हुई है, ठीक है, वो सारा टिश्यू रिपेयर भी हो गया है, but there will be क्या ultimately इसने क्या किया है, it will limit the joint movements, ठीक है। joint movements को लिमिट कर देगा, मतलब कि आपकी मूवमेंट में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। contractures, this is called contractures and there can be obstruction of tubes and channels, that is called strictures, ठीक है। stricture formation भी हो सकती है और contractures formation भी हो सकती है, ठीक है। contractures formation किस जगह पे होगी, there will be the joint movements। ओके, ये कंप्लीट हो गया है। अब मुझे कौन बताएगा factors that influence the tissue repair। हाँ जी, फाइका अशफाक, आप बताओ। कौन कौन से फैक्टर्स हैं मैम? इन्फेक्शन, हाँ, इन्फेक्शन,
infection, diabetes, poor perfusion, mechanical factors, which include pressure or torsion on the wound, and location of the injury. Okay, good. अच्छा, Zainab Noor, आप बताओ what are the factors that influence the tissue repair? Ma'am, glucocorticoids, diabetes, obstruction of pathways, the mechanical factors as well, diabetes, arteriosclerosis, all these factors will, blood flow, these will affect tissue perfusion. ठीक है, good. अच्छा, tomorrow we will the topic of wound healing, ठीक है? wound healing का सारा करेंगे डिटेल में. आप लोग साथ साथ पढ़े हो ये सारे टॉपिक्स? मैम कॉस्मेटिक स्कार में क्या फर्क है या हाइपरट्रोफिक स्कार में? सॉरी, थोड़ा सा कॉस्मेटिक प्लीज स्कार और स्पीक लाउडली. हाइपरट्रोफिक जी स्कार, बेटा, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ ही नहीं आई. प्लीज आप थोड़ा सा. मैम कॉस्मेटिक स्कार और हाइपरट्रोफिक स्कार में क्या फर्क है? कॉस्मेटिक स्कार एंड हाइपरट्रोफिक स्कार, ठीक है? कॉस्मेटिक स्कार होते हैं कि मतलब इस तरह के कि आपकी केस हो गया, ठीक है, या आपके इस तरह की ऐसी जगहों पे है कि जहाँ पे वो नजर आ रहे हैं, ठीक है? तो कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि वो अच्छे नहीं लगते, ठीक है? या किसी ऐसी जगह पे है, ठीक है, वहां पे आपको नजर नहीं आ रहा है या आपको मतलब कि दूसरे लोग नहीं देख सकते, ठीक है? तो हम कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी है कि आप काफी कॉन्शियस होते हो कुछ चीजों के बारे में, ठीक है? जैसे सिजेरियन के स्कार्स हैं, ठीक है, वो भी कॉस्मेटिक स्कार्स में ही आएंगे, ठीक है? और हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि वहां पे उनकी जस्ट टिश्यू की स्कार तो बना है, ठीक है, लेकिन प्लस उसमें हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है, ठीक है? एक तो जस्ट स्कार है कि स्मूथ सरफेस है, ठीक है, लेकिन ठीक है कि वो आपकी स्किन के साथ मैच नहीं कर रहा, बट देयर इज द जस्ट स्कार, ठीक है? अब हाइपरट्रॉफिक में क्या है कि उसमें टिश्यूज की हाइपरट्रॉफी भी हो गई है. इस तरह ये किलाइड फॉर्मेशन में क्या होता है कि अगर आप देखोगे उसकी सरफेस जो है ना नॉर्मल सरफेस की इक्वल नहीं होती, उससे काफी उभरी हुई होती है, ठीक है? आई मीन के जब आफ्टर टिश्यू रिपेयर के बाद टिश्यू की हाइपरट्रॉफी होती है, उसकी नॉर्मल सरफेस जो है इक्वल नहीं होती, वो सरफेस रेज्ड होती है. इट मींस देयर इज सम एलिमेंट ऑफ हाइपरट्रॉफी. हाइपरट्रॉफी का मतलब यही होता है ना, अगर आप जनरली किलॉइड में तो खैर काफी ज्यादा होती है, ठीक है, तो करना पड़ता है और सर्जिकली भी. और कुछ तो साथ साथ आप लोग इसकी प्रेपरेशन को फिर आप एग्जाम और टेस्ट वगैरह. मैम माई टर्म कब होगी? तो आप लोगों को डेट बता दी जाएगी, अभी मुझे नहीं कंफर्म इसका. आपकी जो 3rd ईयर की इंचार्ज है, कौन है इंचार्ज? आई थिंक डॉक्टर रूज एंड तो आप लोगों को बता दी जाएगी. अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आप सब लोग क्यों नहीं कैमरास ऑन करते? सिर्फ मुझे 4-5 स्टूडेंट्स नजर आए. नहीं लगे कि मैम सिग्नल नहीं आता. मैम कैमरा ऑन किया लेकिन आवाज का फिर मैम कैमरा जब ऑन करते हैं तो आपकी आवाज नहीं आती. और कुछ 2-3 कुछ जगहों पे कनेक्टिविटी इश्यूज होते हैं कैमरा ऑन करने से. तो आप लोग कोशिश किया करो कि कैमरास ऑन करके, ताकि हम पता हो कि आप लोग सुन रहे हो. जस्ट ऑन करके आप लोग चले जाते. नहीं मैम कैमरा ऑन करके उसके बाद अक्सर बार का आवाज आपकी बहुत कट रही होती है जब कैमरा ऑन होता स्लाइड जो होती है वो भी ब्लर होना शुरू होती है, आपकी आवाज ही सही से नहीं है. आपकी अपनी वो आवाज जो भी नहीं जाती स्लाइड्स हैं आप वो तक. भी ब्लर हो जाती हैं, आवाज भी आपकी कटती है फिर. अच्छा चलो ठीक है, ओके, सबकी लगा देना, सबके एक्सक्यूज.